Assalamu alaikum, ask your pharmacist. My name is back here with another informative lecture on the chapter 6 of Pharmaceutical Management and Marketing by Dr. Nadeem Irfan. In this chapter, we will be studying about the role of leading in a pharmaceutical industry. First, I will discuss about the motivation and then the historical approaches for motivation. And then we will discuss about the types of the motivation and what approaches can be used to motivate the personnel working in a pharmaceutical industry. So without any delay, let's start with the lecture. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel, ask your pharmacist friends, and share this lecture video. So first of all, I will tell you what is leading. So leading is involved in influencing the work behavior of worker towards achieving organizational goal. यानी हम वर्कर के बिहेवियर को इस तरह मोल्ड आउट करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करें. The people can be influenced by utilizing several motivational approaches that focus on individual needs. Motivation and leadership are two approaches influencing the people. तो इसमें मोटिवेशन और लीडरशिप ये दो तरीके आ जाते हैं जिससे हम पर्सनल्स को मोटिवेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन डिटेल मोटिवेशन. तो मोटिवेशन होती क्या है? So motivation क्या होती है? Motivation is the set of forces that cause people to behave with tendency to persist in a favorable manner to achieve goal or reward. यानी कोई ऐसे कॉज, कोई पीपल या कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से वो आदमी उस चीज पर कंसिस्टेंट रहे टू अचीव दैट गोल और टू अचीव दैट रिवॉर्ड, तो वो उसकी मोटिवेशन है. द साइकोलॉजी of learning indicate that the desired behaviors such as high quality workmanship, good attendance, and loyalty can be induced in workers by reward by which यानी हम एक पर्सन में गुड अटेंडेंस, लॉयल्टी और गुड अटेंडेंस कैसे कर अचीव कर सकते हैं? बाय रिवार्डिंग हिम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. Motivation is immeasurable since it has an intentional internal force. मोटिवेशन जो है वो इनमेजरेबल है क्योंकि ये आपके अंदर से आती है. हाउएवर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ गाइड फॉर द मोटिवेशन. उस पर्सन का बिहेवियर जो ये शो कर रहा था कि आइदर ही इज मोटिवेटेड और नॉट. और ये आपके अंदर से ही चीज आती है कि आप किसी चीज को करते हो या नहीं करते या छोड़ देते हो. एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ वंस एबिलिटी, degree of motivation, desire to do a job, and the working conditions like tools, materials, information needed for the job. एक पर्सन के पास जब इंडस्ट्री को रन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा, स्पेस ही नहीं होगा, मोटिवेशन का. सो मनी, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन, एसओपीज, ये सारी एक मोटिवेशन होती है टू डू वर्क. The motivation process begins with our desire to fulfill needs. जैसे ज़रूरत जात की माँ है, which reflects our deficiency within the individual. The need can be classified in the into the various types, and there is a defined rank order of human need. This has been mentioned in the functioning section. जो motivation होती है that provokes of need leads to a actuation of a chain of event. The individual want to do a specific task. For example, he want to get tons, initiate action, and either to get satisfied or unsatisfied. This all actions depend on the motivation. Unsatisfaction को क्या lead करेगा? Unsatisfaction then again start the consequences as mentioned in the figure. तो ये एक फिगर है जिसमें ये बताया हुआ है. मैं आपको फिगर शो करती हूँ. उसमें ये बताया हुआ है कि देखिए कोई अनसेटिस्फाइड नीड हुई जिसने उस पर्सन में क्या कर क्रिएट की, टेंशन क्रिएट की, जिसकी वजह से उसमें क्या हुई, उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप हुई और वो सर्च अपना बिहेव शो करना शुरू कर दिया. वो उसमें मोटिवेशन आई कि कैसे वो इस अनसेटिस्फाइड नीड को कंप्लीट करे. तो जब वो नीड सेटिस्फेक्शन हो गई तो उसकी टेंशन जो है वो एट एंड कम हो जाती है. तो एक जो नीड है हमारी, वांट जो है
वो एक टेंशन क्रिएट करती है दैट लीड्स टू द एक्शन, और वो आइदर या तो सेटिस्फेक्शन में लीड करती है या डिससेटिस्फेक्शन में लीड करती है। और अगर वो अनसेटिस्फाइड होगा ही विल ऑब्वियसली क्रिएट टेंशन, और वो चीज उसको मोटिवेशन करेगी। फिर क्या आपको मोटिवेट करती है? आपकी बेसिकली बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस होता है पर्सन का, एक क्या तो इंट्रिंसिक होता है या तो एक्सट्रिंसिक होता है। नीड है, कोई डेफिशिएंसी है, वो चीज आपको सर्च फॉर द वेज टू सेटिस्फाई द नीड की तरफ लेके जाएगी, और आप देखोगे कि भाई इस नीड को मैं कैसे फुलफिल करूं। फिर वो चॉइस फॉर बिहेवियर करेगी फॉर सेटिस्फाई दैट नीड, और आप उस नीड को पूरा करोगे, और अनसेटिस्फेक्शन को आप खत्म करने की कोशिश करोगे। और आप देखोगे, एवेल्युएट करोगे कि हाउ कैन आई अन सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या जॉब कर सकता हूँ, मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरे पास पैसे आएंगे, और कैसे मैं अपनी मनी की जो टेंशन है उसको सेटिस्फाई करूंगा। फिर वो चीज़ हमें डिटरमाइन करती है for the future needs, for the search of the choices and to do actions. These are the motivation frameworks. It can be individual preference, उसमें unsatisfied हुआ, drive toward the goal, attainment of the goal, इस तरह ही extrinsic और intrinsic भी वर्क करती है। तो ये थी हमारी मोटिवेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मोटिवेशन के लिए अप्रोचेस यूज कर की जा सकती हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिव्यू अर्लियर अप्रोचेस फॉर एम्प्लॉयज मोटिवेशन। हम देखेंगे शुरू में कि एक एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करता है। मनी मोटिवेट करता है, फेम मोटिवेट करती है, एक्नॉलेजमेंट मोटिवेट करती है, उसको बोनसेस मोटिवेट करते हैं, उसको क्या चीज मोटिवेट करती है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर मोटिवेशन। तो उसमें क्या थी? उसमें यही थी जो मैंने आपको पीछे बताई कि आपके पास अनसेटिस्फेक्शन थी, आपके पास कोई नीड थी, कोई वांट थी जो आप में टेंशन क्रिएट कर रही थी, और आपने उसको फिल करने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म किया दैट लीड टू द सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारी थी हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर मोटिवेशन। सेकेंड आ जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच, अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एम्प्लॉयज मोटिवेशन, इट इज assumed that the management knows more than about the job being performed than the workers doing them। तो वर्कर ज्यादा जानते हैं कि वो जॉब कैसे परफॉर्म कर रही है। इन फर्दर कंसिडर दैट the work is inherently unpleasant for most of the people। जब एक काम है वो सबको ही बुरा लगता है, and that the money they earn is more important than them for the nature of the job। अब कोई ऐसी जॉब है जो कोई भी नहीं करना चाहता, तो उसके लिए फिर जो है वो पे ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि लोगों में एक मोटिवेशन हो पैसे की। So it means according to the approach people could be expected to perform any kind of the job if they are paid enough. Although the role of money as a motivation factor cannot be detached, yet proposals of the traditional approach take too narrow of the views or role of momentary compensation and also fail to consider other motivational factors। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि मनी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, मोटिवेशन एंड द डिजायर टू डू दैट वर्क ही उनकी सोली अप्रोच होती है, सोली उनके अंदर मोटिवेशन होती है। तो उनके लिए हम डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। देन कम्स दी ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप क्या अप्रोच है कि हम अपने पर्सन जो हमारे वर्कर हैं उनके साथ हम एक लॉयल रिलेशनशिप कायम करें और उनको मोटिवेट रखें। फॉर एम्प्लॉयज मोटिवेशन द ह्यूमन रिलेशनशिप एम्फेसिस रोल ऑफ सोशल प्रोसेसेस इन द वर्क प्लेस। The basic assumption point that the employees want to feel यूजफुल, इम्पोर्टेंट एंड बिलोंग टू द सोशल ग्रुप। उसको वहां पर यूजफुल फील करवाएं तो वो काम करेगा। दीज नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी इन मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है माइट अलाउ अ वर्क ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ डिसीजन इवन दो द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड। उसको हमने थोड़ा सा उसकी जो है वो आइडिया ले लिया, तो ये उसकी तरह एक अप्रोच थी जो वो कनेक्टेड फील करेगा। This symbolic gesture of appearing to allow participation is expected to enhance motivation, even although no real participation take place। यानी उन्होंने जो उसको आइडिया दिया, आइदर उसकी कोई रियल अप्रोच नहीं है, बट फिर भी उसने वो बोला, उसकी पार्टिसिपेशन हुई, तो ही फील मोटिवेटेड। However, enhancement of the motivation with false impression of the contribution and participation has been objected and overruled। देन कम द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में क्या करते हैं हम? द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच फॉर एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैरियर्स द concept of human needs and motivation
one step more distance. The human relationship believes that the false impression of the contribution and the participation could enhance motivation. अब उनको हमने एक गलत दिलासा दे दिया बट स्टिल दे आर मोटिवेटेड क्योंकि उनके साथ हमने ह्यूमन रिसोर्स ने उनके साथ एक सोशल लिंक क्रिएट कर लिया है चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो. द ह्यूमन रिलेशनशिप बिलीव्स दैट द false impression of the contribution the participation could enhance motivation. The human resource view assumes that the contribution themselves are valuable to both individual and organization. उनको ये फील करवाओ कि they are valuable. It assures that people want to contribute and are able to make genuine contribution. Management task then is to encourage participation and to create a work environment that makes full use of that human resource available ताकि हमारे पास जितना भी human resource available है वो हम fully utilized करें. तो ये थी हमारी मोटिवेशन और मोटिवेशन की कुछ अप्रोचेस. द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम यही होती है कि हर इंडिविजुअल मेंबर स्ट्रेंथन हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आपसे फार्मासिस्ट मरीम को काइंडली सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फेलोज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. आगे हम इसकी थेरीज जो होंगी वो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे.